you can see initially these points are red, means router is stopped. If I put a cursor over here, it says router 2 is stopped. Now we have to start our routers and we have to go in the console port. So we have our you can see router gets started all the yes sir राउटर का कहाँ पे है उसको कौन से क्लिक करना है सर आपके पास में लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे between after finishing the NITTR2 if you are, there is a arrow very small white color arrow in a gray strip which is the bench line differentiating the list of candidates. Sir, cursor is over there. Administrative distance आ गया PPT. आपको कर्सर के लिए लोकेशन मिल गई? हाँ जी कर्सर की लोकेशन मिल गई है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का वो हो गया ना PPT. नहीं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल the list of the candidates will be removed. It is removed but वहाँ पे एक वो आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1.ppt आ रहा है और पेज नंबर आ रहे हैं पेज नंबर 1 2 3 4. Now GNS is available. It's only static routes is available. जो PPT है static routes की. Just a second. Let me complete test. So now what you can see, can you see the desktop? Sir, can you see the JNS3 now? No sir. No? Can you see the JNS3 now? No. Sir, what you can see on your screen? Static route PPT is showing. Static route PPT. Only that is displayed. Static route PPT. Now what's visible to you, sir? Operation TALs only. Presentation controller. Sir, now you can see the JNS3 or not? Can I have the TeamViewer ID of yours? So, any other remote center will be having any issues in the video? No, sir, there is no issue in AKS University. It's visible. Whomsoever is having the issue, please tell me your TeamViewer ID. I will take the control and solve the all the your queries. Put the user ID. Yeah. Put 9. What is it? 49. 19 49. 49 911. 911 57. 217 49. It's 3493. Sir, can you repeat once again? It started with 49. We'll start with 3. With 3. Yes, 349. 349. 911.
So 9111, 11 11 57 57 or 257? 557 557. 557. Just a second. Password? What is the password? 7685. 7685. So just give us some moment. Rest of the remote center, we are continuing with this lecture. So you please stay on the screen. Sir, we are continuing. So Just give us 5 seconds. I will clarify your all the queries. And then you Mulana. So can anybody tell me which mode is this? This is our second mode. It is privilege mode. Actually, I will show you the user exit mode, but later on. This is our privilege mode. So can we make any change in this mode? Can we make any change in this mode? Remote centers, can we make any change in this mode? Backside, can we make any changes in this mode? No. It is a privileged mode and we cannot make any change in this mode. Likewise, same, we have router 2. We are in the same mode. So now what we will going to do, first we will assign an IP address to our router. Is it visible to all of you or no? It's not visible, right? Just let me do some change in this case. Just, it's not actually visible. You see, you have to move something. एक लॉगिन करना मैं देखो एक सेकंड इसी में सब मैं तो खुद वही देख रहा हूँ कहाँ पे ये हमने किया ऑलरेडी यही नीचे उसमें स्क्रॉल डाउन करके देखिए तो सही एनसी वाइड like last time हुआ था
Better? Is it better now? Is it clear? Is it clear now? At the back. Is If this you are having some problem, please come forward. वो ट्यूबलाइट ऑफ कर वाले ट्यूबलाइट बंद करा रहे हैं फ्रंट वाले इससे बैकयार्ड में विजिबल हो जाएगा now it's visible at the back end. Thank you, sir. So we are going to assign IP address. This will be my network. Yes. Sir, whatever you are doing, can you please specify how you are doing it? Okay. You are assigning the IP address, it's not clear how you are assigning. Still, I didn't do anything. So what we did first, we start our router, and after that we console them. You have to click here. This is to console all devices. After that, it will come up with this kind of a screen. It's okay. So now we have to, in which mode we can make any change to any router. In global config mode. To go the global config mode, you need to type a command config terminal. When you type this command and hit enter, you will come into the global config mode. Here you can assign the IP address. And if you have to go back to the previous mode, you have to type exit and you will get back to previous mode. Our privilege exit mode. Not visible. दिख रहा है अभी आपको? Is it visible now? I think it's visible. At the back end, is it visible, sir? So now I told you how to switch between the two modes, privilege and global config mode. Now I have to check how many interface I have with this router. There is a command show IP interface brief. You can show IP interface brief. This is the command. When you type this command in privilege mode and hit enter, because we have connected only with fast Ethernet, so it's only showing fast port. We can also connect with serial ports. I will show this later on. So you can see there, IP address is unassigned, status is administratively down, protocol it is also down. Mean अभी इस पे कोई IP assign नहीं है, जो पोर्ट है वो shut down है, connected है but shut down है. There is a one more command, but it will work later on. Now we have to again, I show you we have two interfaces. First is fast F0/0 and second is fast Ethernet 0/1. This is two interfaces.
So we are connected with which interface? F0/0 on the both end. You can see there. This is the interface through which we are connected to both router. It is the same situation like we have physical router and we have connected a fast Ethernet cable in the port of F0/0. There is a port number at the back end. There is a ports available in the router and switch, and also ports number also available, because how you come to know that which network is connected to which port and which IP address you have to assign to which port and which network. So this is numbering, this is port numbering through which you can assign an IP address to any port. Now we have to go in the config terminal mode. So sorry, global config mode. Now I have to assign IP address. मेरे को किस interface को IP address assign करना है? Can anybody tell? आपको यहाँ पे दो इंटरफेस दिख रहे हैं. ये इंटरफेस है जिसके थ्रू ये लिंक कनेक्टेड है. अब F0/0 दिख रहा है आप सबको. ये वो इंटरफेस है जिससे मेरा जो लिंक है वो कनेक्टेड है. ये जो आपको लाइन दिख रही है ये फास्ट इथरनेट है और ये कनेक्टेड है F0/0 से. तो मैं इंटरफेस में जाऊंगा. ये कमांड लिख लिया आप. इंटरफेस F फास्ट इथरनेट 0/0. यही वो मेरा इंटरफेस है जो कनेक्टेड है बोथ एंड पे. मेरा राउटर 1 है, उस पे ये इंटरफेस कनेक्टेड है. मैं हिट एंटर करूंगा. उसके बाद मैं इसमें आईपी एड्रेस असाइन करूंगा. कैसे? मेरे को टाइप कमांड करनी है आईपी स्पेस एड्रेस. अब मेरे को यहाँ पे अब मैं राउटर पे आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूं. This is done on the real router as well. This you can take it as you are doing on the real devices. There is no difference, not even a single difference between these two. So it is like your real devices. So you have to assign an IP address. I have taken the network. It is up to you. You can take any IP addresses like which you have given to. You can take any IP address which you have given to your network. I have taken 10.1.12.0. I have taken IP addresses of class A, but it is subnetted to class C. I have to type 10.1.12. Now I have to give so now it's visible. Remote site, are we connected? Remote sites, I hope they are connected. So now I have to give the IP address. What is this? Up to 3 octet. This is my network. I can give any number. I have to make an IP address. This is my network ID. Now I have to assign any host. Like I put 1. Like we are doing in subnetting. That we are creating a network. We are assigning hosts like 1, 2. Likewise, I have assigned this IP address 10.1.12.1. This is my IP address which I given to F0/interface of router 1. After that, you have to given the subnet mask. अगर आप बिना subnet mask के इसको ऐसे ही enter मार दोगे तो ये क्या दे देगा आपको? Incomplete command. अगर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क करोगे तो आपको क्या दिखा रहा है? ये IP सबनेट मास्क मीन आपको सबनेट मास्क देना है. यहाँ पे सबनेट मास्क ये कौन सी क्लास मैंने लिया? क्लास ए का है, बट मैंने सबनेटेड करा हुआ है क्लास सी में. तो मेरे को क्लास सी का ही सबनेट मास्क देना पड़ेगा. 255.255.255.0. मैंने एंटर किया, इसने आईपी एड्रेस ले लिया है. आई विल शो यू. इसके बाद हमें अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि इसके जो पोर्ट थे वो डाउन थे. एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन थे या नहीं थे? वो डाउन थे. तो उन पोर्ट्स को अप करना है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके. अगर आप उनको अप नहीं करोगे तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. सो जब हम टाइप एक कमांड है हमारी नो शट डाउन. हमारे को ये जो कमांड है वो हमेशा कोई भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देना, उसके बाद ये कमांड डालनी ही डालनी है, वरना इंटरफेस अप नहीं आएगा. जैसे ही आप ये कमांड डालोगे इंटरफेस अप आ जाएगा.
अब हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब हम चेक करते हैं दोबारा से कि वो आईपी एड्रेस जो हमने असाइन किया है वो इंटरफेस को असाइन हुआ या नहीं। शो कमांड क्या दिया मेरे को बताओगे इंटरफेस चेक करने की? रिमोट साइट। So can you see fast Ethernet 0/0 IP address this status is up, protocol is up. So now we have what we did, we just assign an IP address. Now the most important thing is routing table. Every router has its routing table. Routing table is what? It is a table where it's have entries to all router connected to it, or all the router it's learned by dynamic or static routing protocols. So there is a command क्या है? show IP route. अगर आप ये कमांड टाइप करोगे तो आपको राउटर की राउटिंग टेबल शो हो जाएगी। इसमें आप देखोगे पहले कोड्स के सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। C denotes connected, S denotes static, R is a RIC, M mobile, so on. So, and one thing more, gateway of the last resort is not set. Can you see that? Gateway of the last resort is not set. So, we will do some default routing. Then you will see there is no such kind of message. So now, what is the main? 10. We have major network is 10. What is the message? Network 10 is subnetted into one subnet, and which is that subnet? This it will show only you the network. It will not show you the whole IP address. It will only show you the network ID. In the routing table, you will only have the network ID because our router is concerned of network ID, not the as a proper host. So it is directly connected via fast Ethernet 0/0. किसी को कुछ आइडिया हुआ कि आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं एंड किस तरह के पोर्ट्स हो सकते हैं और किस राउटिंग टेबल क्या होती है? Any idea or any doubt? At least you have doubts. If you have no idea, at least you have doubt. So let's clear the doubts first, because अभी हमारे को आगे बढ़ना है, राउटिंग करनी है पूरी, तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होगी अगर आपको यही चीज समझ नहीं आएगी। तो किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे ताकि मैं वो डाउट क्लियर करके गोइंग फॉरवर्ड हो सकूं। कमांड्स के साथ स्टेप्स दे देंगे तो कोई कमांड्स आपको सब मिल जाएगी। कमांड्स आप डोंट बी वरीड अबाउट कमांड का कुछ नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा भी टाइप करते हो, जैसे शो है, शो के बाद मेरे को कितनी कमांड चल सकती है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क मारोगे तो ये देखो अपने आप बताएगा। राउटर विल टेल यू ईच एंड एवरी कमांड ऑटोमेटिकली। ये सभी कमांड्स है जो मैं शो के बाद यूज कर सकता हूँ। अब देख रहे हो कितनी सारी कमांड्स है, इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना वो ये भी आपको बता देंगे। बिल्कुल, अभी आपको हमें देखना क्या था, हमें देखना था आईपी जो हम इंटरफेसेस है, आईपी के इंटरफेसेस देखने हैं, क्योंकि इंटरफेसेस पे आईपी असाइन कर रहे हैं ना। सर ये DNS फ्री है, सबको अवेलेबल हो जाएगा, सबको हो जाएगा, बिल्कुल सबको सिस्टम पे मिलेगा। प्रैक्टिकल होगी सर इसकी, बिल्कुल पूरी प्रैक्टिकल लैब होगी जो सभी आप लोग अपने आप करोगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था आईपी देखनी है कि हमें इंटरफेस पे असाइन है या नहीं है। आईपी के बाद आप फिर से एक क्वेश्चन मार्क करोगे तो देखो आईपी के बाद भी कितने सारे ऑप्शंस है। हमें क्या देखना है, इंटरफेस। इंटरफेस के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे। हमें क्या देखना है, ब्रीफ समरी ऑफ आईपी स्टेटस एंड कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट मॉडिफायर्स। हर एक कमांड, जो भी कमांड्स दे रहे हैं सबका डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, सबका ही डिस्क्रिप्शन इसमें होगा। जब आप ब्रीफ करोगे तो आपको ये बता देगा। कमांड्स के लिए डोंट बी वरीड, कमांड्स आपको मिल जाएंगी और आप जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप सब याद हो जाएंगी। कमांड्स के लिए डोंट बी वरीड, आप जितनी लिख सकते हो लिख लो, वरना कमांड इज नॉट एन इशू, डोंट बी वरीड अबाउट इट, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट मेन है क्योंकि कंसेप्ट इज मेन। कमांड इतनी है कि शायद मैंने इतनी कमांड्स पढ़ी है, मेरे को शायद आधी से ज्यादा मैं भूल चुका हूँ। जो डेली यूज करता है बंदा उसी को याद रख पाता है।
हम लोगों ने IP एड्रेस वी विल असाइन। अब हमने राउटर 1 है जो हमारा, उस पे हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया है। रिमोट सेंटर, आपको क्लियर है IP एड्रेसिंग, हाउ टू असाइन IP एड्रेस टू ए राउटर? Yes, it's Remote center. yes, it's clear. Okay. Now we will assign IP address to router number 2. If you have any doubt, please ask me. अब हम राउटर 2 पे आते हैं। राउटर 2 पे भी अभी हम किस मोड में हैं? Which mode is this? It is global. No sir, it is privilege. So now we have to go in global config mode. What is the command? Config terminal. But if I will type a short like this, if you will type a little like conf and you will do a tab, it will automatically tell you the commands. You will do tab and it will automatically there. Yes. Enter configurations command, one command per line, Control Z to enter the line. So now अब मेरे को कोई बताएगा कि R2 के किस इंटरफेस पे हम IP एड्रेस असाइन करेंगे? In which interface we gonna assign IP address? Can anybody tell me? F0/0 because यहाँ पे जो इंटरफेस कनेक्टेड है वो F0/0 है. So we will go in the interface F0/0 कमांड क्या थी हमारा जो हमने IP एड्रेस को असाइन करने के लिए ली थी? यही थी कमांड. दिस वाज द कमांड. So we have to type IP address, then we have to type address and subnet mask. Enter and अब हमें क्या करना है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कौन सी कमांड है वो? नो शटडाउन. आपको हमेशा करनी ही करनी है, अदरवाइज आप नो शटडाउन नहीं करोगे तो मैं उसका, चलो हम नहीं करते हैं नो शटडाउन, देखते हैं क्या होता है. अब हम इसका इंटरफेस दोबारा से इसका इंटरफेस चेक करेंगे कि इंटरफेस पे IP आया या नहीं आया. गेटवे अभी नहीं, गेटवे अभी रिक्वायर्ड नहीं. जब आप आगे टोपोलॉजी बनाएंगे वो इट विल कम अप लेटर. गेटवे विल कम अप लेटर. सो अब हमारे को आप एक चीज देख पा रहे हैं कि अभी भी ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है. अब हमने IP एड्रेस असाइन कर दिए, हमारी कनेक्टिविटी है, हमने पोर्ट को अप नहीं किया है, नो शट नहीं है, बट अब हमारे पास एक कमांड है. इट इज वेरी यूजफुल कमांड जो कि यूज होती है हर जगह. इट इज अ पिंग कमांड. अब हम पिंग करेंगे. अगर हमारा पिंग जाएगा, पिंग सक्सेसफुल होगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी कनेक्टिविटी हो चुकी है. अब पिंग किसको करेंगे? पिंग हम IP एड्रेस को करेंगे जो हमारे दूसरे एंड पे IP एड्रेस है. दूसरे एंड पे IP एड्रेस क्या है? 10.12.1 12.1. उसके लिए कुछ अपने यहाँ स्टॉक अभी इसको भी शेयर करना, दोनों एक टाइम पे या तो स्टॉक डेस्कटॉप शेयरिंग करके 1 मिनट के लिए डॉक्यूमेंट शेयरिंग पे जो भी या यहाँ पे खोल कर लीजिए डॉक्यूमेंट है. यहाँ से पता चल जाएगा आपने इसको करना है तो आप एक काम कीजिएगा, इसको करिए और आपको GNS3 करना है. डेस्कटॉप शेयरिंग पे डेस्कटॉप शेयर स्टॉप करना है तो किसी से
डेस्कटॉप शेयरिंग को स्टॉप करके फिर हम पीपीटी जाएंगे। इसको स्टॉप किया। ओके, अगर आपको दोनों करने हैं फिर ऐसे होगा, फिर आपको टाइम के साथ में जिस भी जगह पे जाना है आपको उस जगह पे जाना। आपका वीडियो भी दिख रहा है अभी, जो आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसे जिस वीडियो भी चल रहा है। सो अभी हमने पिंग किया, आपने देखा सक्सेस रेट क्या है इस पिंग की। व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ पिंग? 0%। अब पिंग, अब हमने R2 से हमने ट्राई किया पिंग करने को दूसरे एंड पे, बट हमारा R2 का ही जो पोर्ट था वो शट डाउन था, पर R1 का अप है। R1 की तरफ से पिंग करके देखते हैं क्या R1 को पिंग होगा। So now we will ping to R1, from R1 to R2. What is the command? Ping 10.1.12. पिंग जाएगा नहीं जाएगा? ये पिंग क्यों नहीं गया, कोई बताएगा? क्योंकि पोर्ट ही शट डाउन है। अब आप दरवाजे के बाहर खड़े हो, दरवाजा ही बंद है तो आप अंदर आ ही नहीं सकते। सो अब हम क्या करेंगे, R2 के पास जाएंगे, आपको स्क्रीन पूरी विजिबल है अब, ठीक है। R2 के पास जाएंगे हम, और दोबारा से हमें किस मोड में जाना, कोई भी चेंज करना है तो किस मोड में जाना पड़ेगा? कॉन्फिग टर्मिनल। कॉन्फिग टर्मिनल मोड में गए, इंटरफेस में जाना होगा, क्योंकि इंटरफेस ही शट डाउन है हमारा, तो हमें इंटरफेस में जाना होगा। इंटरफेस में जाएंगे, और इंटरफेस कौन सा था हमारा? फास्ट 0/0। इंटरफेस में गए, कमांड क्या थी? नो शट डाउन। अब दोबारा से पिंग ट्राई करते हैं। अगर आप अप एरो करोगे तो आपको लास्ट जो भी आपने कमांड्स में है हिस्ट्री में वो आपको आ जाएंगी। तो पिंग करेंगे हम और देखते हैं ये पिंग जाएगा नहीं जाएगा। पिंग सक्सेसफुल। नाउ पिंग इज 100% सक्सेसफुल। अब हम R1 से पिंग करेंगे, सक्सेसफुल। सो अगर आप शट डाउन करना भूल गए तो मेन नेटवर्क स्टिल डाउन। नाउ मैंने आपको स्टैटिक राउट के बारे में बताया था, मैं आपको डिफॉल्ट राउट भी बता देता हूं। डिफॉल्ट राउट कल हमने डिस्कस किया था, शायद मैम ने मेरे से क्वेश्चन भी किया था, डिफॉल्ट राउट क्या होता है और क्यों यूज होता है। डिफॉल्ट जो हमारा डिफॉल्ट राउट है, राउटर कोई भी हमारे पास एक राउटर है, उसको एक डिफॉल्ट गेटवे देने के लिए होता है। मतलब जब राउटर के पास किसी भी नेटवर्क के लिए डायरेक्टली कोई कनेक्टिविटी नहीं है और हम चाहते हैं कि हम उसको एक डिफॉल्ट राउट देंगे तो जिसके थ्रू राउटर को दूसरे किसी भी और नेटवर्क पे कनेक्टिविटी आ जाएगी। ये आपको जब ज्यादा क्लियर होगा, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। When there is no entry for the destination network in the routing table, the router will forward the packet to its default router. मैंने R1 है मेरे पास और मेरे पास R2 है। R1 के पास डायरेक्टली जो नेटवर्क 2 है, मेरे पास R1 है एंड R2 है। R1 के पास कोई डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं है R2 के लिए। सो अब R1 हम क्या करेंगे, R1 के पास एक डिफॉल्ट राउट दे देंगे, डिफॉल्ट राउट देंगे और उसको डिफॉल्ट गेट पे क्या करेंगे, R2 को, क्योंकि R2 ही डायरेक्टली कनेक्ट करेगा हमें इस नेटवर्क से। सो ये डिफॉल्ट हमारा एड्रेस होता है। ये अभी मैं आपको डिफॉल्ट एड्रेस भी बिल्कुल दिखा दूंगा। इट विल
टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। और डिफॉल्ट राउट से हमें एक और फायदा होता है, जो हमारी राउटिंग टेबल है उसका साइज कम होता है। एक्चुअली जो प्रोडक्शन नेटवर्क में कोई भी राउटर जो भी लगे होते हैं उसमें लैक्स में होते हैं राउट्स होते हैं। सो जितनी ज्यादा बड़ी राउटिंग टेबल होगी वो मेमोरी इतनी कंज्यूम करेगा और राउटर की जो प्रोसेसिंग है उसको हैम्पर करेगा। सो हमारा मोटो ये होता है कि कम से कम राउटिंग टेबल में राउट्स हो, बट कोई ऐसा मेथड भी हो कि सारे राउट से हमारी कनेक्टिविटी भी हो। सो डिफॉल्ट जो हम डिफॉल्ट राउट देते हैं उसका जो सिंटेक्स है वो है IP राउट 0.0.0 एंड 0.0.0 नेक्स्ट हॉप। जो हमारा नेक्स्ट हॉप होता है वो हम देते हैं। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। नाउ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द नेटवर्किंग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। आपने किसी ने सुना है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस? कभी शायद नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू, बट बिफोर दिस व्हाइट बोर्ड पे कैसे रिमोट सेंटर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So I will tell you about the administrative distance. In short, we will call it AD. What is this? आपने राउटिंग टेबल देखी सबने? राउटिंग टेबल में कुछ ऐसा करके था, C 10.1.12.0 डायरेक्टली कनेक्टेड, इस तरह से कुछ था। जब हमने शो IP राउट किया था तो इस तरह से कुछ आया था, हम सभी ने इसको देखा था। तो अब होता क्या है कि सपोज मेरे पास एक राउट है, वो यहां से मेरे पास कनेक्टेड है, और मेरे पास एक राउट है और मेरे को एक राउट यहां से मिल रहा है, ये R1 है मेरे पास कोई राउटर, और एक राउटर मेरे पास यहाँ पे भी है, और एक राउटर मेरे पास यहाँ पे भी है। मेरे को यहाँ पीछे कोई नेटवर्क है, अब मेरे पास इस तरह का सिनेरियो है कि R1 है, R1 जो R3 है उस पर रीच करने के लिए डायरेक्टली भी जा सकता है और वेयर दिस वे भी जा सकता है। सो अगर मैं बात करूं कि सपोज ये राउटर 3 का एड्रेस है, ये नेटवर्क, ये इसके पीछे का भी राउटर 3 का एड्रेस है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इसमें, और बट इसी नेटवर्क को ये यहां से भी घूम के जा सकता है। भाई अब नॉर्मली मेरे को दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए मैं चाहे तो डायरेक्ट बाय प्लेन जा सकता हूँ, बाय ट्रेन जा सकता हूँ, बाय अंबाला जा सकता हूँ, बाय यमुनानगर, रास्ते तो कहीं है, बट ऐसा भी होता है कि हम प्रेफर वही बात करते हैं जो शॉर्टेस्ट होता है और जो रिलायबल भी होता है। आपको पता है एक ऐसा बात है जहाँ पे नक्सलाइट है,
और एक ऐसा पाथ है जहाँ आर्मी एरिया बिल्कुल सिक्योर है, तो आप किस पाथ से ज्यादा प्रेफर किस पाथ को दोगे? जो आर्मी एरिया वाला होगा रेदर कंपेयर्ड टू नक्सलाइट। सो इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, जस्ट इट इज जस्ट ए नंबर, बट ये जो राउटर राउट को प्रेफर करता है ये प्रेफरेबिलिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज जस्ट प्रेफरेबिलिटी, हाउ राउटर चूज। जिस ये नंबर होते हैं 0 से लेके 255 तक। सो जितना लोअर होगा एडी वैल्यू उतना ही राउट प्रेफरेबल होगा। जिस जो डायरेक्टली कनेक्टेड मेरा नेटवर्क होगा, कोई भी नेटवर्क मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसकी एडी वैल्यू 0 होगी, और जो मेरा स्टैटिक राउट होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। तो 0 ज्यादा प्रेफरेबल होगा या 1? 0। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आगे आपको बहुत ज्यादा काम आएगी जब आपके पास मल्टीपल पाथ्स होंगे, तो आप एडी के बेस पे डिसीजन लेंगे। They are predefined by RFC. It is a RFC document because you can go that document and you can get each and every. RFC is a document regarding networking. If you have any concept, any concern in networking, you can open that RFC. It is available on Google and you can search. No, like in general, what kind of network we can have, what kind of route we can have, like connected, like static, like default, like RIP routes, EIGRP routes, BGP routes. So all of these are predefined. Nothing from beyond this boundary. So they are all they are have predefined AD values, administrative distance. So इसके बाद अब जो मैंने आपको बताया, when duplicate paths are available on the same network, so the router will prefer the path with lower AD value. अभी मैंने आपको दिखाया एक कनेक्टेड था, एक को मैं स्टैटिक के थ्रू ले जाता, तो प्रेफर किसको करता राउटर? जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता जिसकी AD वैल्यू कम होती। AD administrative distance is the first criteria that a router use to determine which routing protocol to use if the protocols provide the route information for the same destination. Like मेरे पास एक सिनेरियो आता है कि मेरे पास यहाँ पे ये मेरा राउटर है, जो कि मैंने आपको बताया है, इसको R3 पे जाने के लिए डायरेक्टली भी है और R2 से भी है। सपोज मैं राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल अभी इसके बाद आएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ राउटिंग प्रोटोकॉल जो वैल्यू होती है रिप होता है, मैं आपको रिप और एएचआरपी पढ़ाऊंगा। जो एएचआरपी की एडी वैल्यू होती है 90 होती है और जो रिप की होती है 120 होती है। तो यहाँ पे कोई डाउट है? अब मेरे को आप एक बात बताओ, ये राउट है मेरे को R3 से भी आएगा और जब मैं राउटिंग प्रोटोकॉल चलाऊंगा तो R2 से भी ये राउट मेरे पास आएगा। तो राउटर 1 किसको प्रेफर करेगा? तो 2 को प्रेफर करेगा या 3 को? यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये राउट जो मिलेगा मेरे को ये रिप से मिल रहा है और ये EIGRP से मिल रहा है। रिमोट सेंटर R1 किस पाथ को प्रेफर करेगा नेटवर्क 3 तक रीच करने के लिए? रिमोट सेंटर आप एडी वैल्यू कंपेयर कीजिए, गिनती कितनी है 120, एएचआरपी कितनी है 90, तो 120 इज ग्रेटर और 90 इज ग्रेटर। सो व्हाट इज आवर क्राइटेरिया? लेसर द एडी वैल्यू बेटर इज द पाथ, प्रेफरेबल इज द पाथ। तो जिसकी एडी वैल्यू कम होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगी, वो पाथ ज्यादा प्रेफरेबल होगा। सो आई होप ये आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही चुका। बाकी और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। Sir, can you take 4-5 routers to calculate administrative distance? You need 4-5 routers to calculate administrative distance. Yes, sir.
Okay, no problem, no issues. Let's draw it, Abhiruchi. R1, R2. It is a simulator. हाँ ये सिमुलेटर में भी होगा actually. So मेरे पास एक टोपोलॉजी है, एक मेरे पास राउट है. यहां से मैं रिप रन कर रहा हूं, यहां से मैं ARP रन कर रहा हूं और यहां से मैं स्टैटिक राउट है. स्टैटिक की जो AE वैल्यू 1 है, ARP की 90 है और रिप की 120 है. So, which path will be preferable? Remote side. Can you tell me which path will be preferable by R4 to reach the network 4? Remote center. Which route will be preferable to reach? R4, R3, R2. Hello. Which route will be preferable? NITTR. From R4, R3, R2. Yes, sir. Yes, it's visible now. Video is not clear. Video is not clear. Right. Okay, sir. Just give me a few minutes. Can you move your camera toward right? So it's brightness कम है sir camera की sir. Yes sir. Now it is Right. okay. Now Sir. it's okay. Fine, fine. Thank you. Sir, now you can tell me router 4 will prefer which path to reach via to network R to network 4. Sir, can you tell me now? So, anybody from back end, front end, can anybody tell me which will be preferable? R4, R3, R2. Sir, I'm asking you which route will be preferable by R4 to reach 4 network? Static route. Static route. Can you tell me reason? What is the reason? Static ही क्यों prefer होगा जबकि ARP और RIP भी मेरे पास है? Sir, can you tell me? This is shortest length. Sir, can you tell me why? So the reason is because the AD value of static route is 1. That is why static will be more preferable rather than ARP and RIP route. So I hope now AD value is clear to all. Remote center, are you getting the AD value properly now? Remote centers. Remote centers, am I audible? Yes, it's audible. It's clear, sir. Thank you, sir. So AD value सबको समझ में आ गई? क्योंकि सिनेरियो बनते हैं, बहुत सिनेरियो आते हैं जब हमें AD के बेस पे डिसीजन लेना होता है. डिसीजन और भी बेसिस पे आप ले सकते हो. So these are some AD values and these are predefined. Ma'am, you can see there. If any route is directly connected to interface, its default जो AD value will be 0. If it is a static route, it will be 1. If it is ARP summary route, it is 5. If it is a BGP, it will be 20. If it is a internal EIGRP, it will 90. IGRP 100, OSPF 110,
and ISS IS 115, RIP 120, EGP 140, ODR 160, external EIGRP 170, internal PGP 200, and unknown 255. So this is the list. Now we have some tasks to do. Like we already made a topology to connect. We have connected two routers. Now what we have to do? First we have to configure one loopback on R1 and R2 with IP address of 10.1.1.1 and 10.2.1.1. So what is on the screen? Screen is probably here. Just remote center, please give me some moment. There is some problem. So what were our objective was? We have to configure loopbacks. Loopback is just nothing, but these are some testing. We just make some networks, but these are some testing networks. ये स्क्रीन का ही हो रहा है यार प्रॉब्लम. अभी तो ठीक है, बट वो डॉक्यूमेंट शेयर भी करना था यार मेरे को. चल ठीक है. ब्रेक कब देना है? ब्रेक कितने मिनट? पूरा 10 मिनट. Remote center. All the remote centers. We are taking a 10-minute tea break, so please come back at 10:45. Sorry, 11:45. Sun. सर वो ईमेल कर दिया डॉक्टर की. सब मिल जाएगा सर, आपको सब कंप्लीट Yes, sir. We are taking 10 minutes break, so please come back at 11:45. As a special need, it's public. ठीक है सर. कोई इशू